Good evening, everybody. April, I, a man of word, one plus nod, R. Hope I'm audible to you all. मेरी आवाज आप सभी को साफ आ रही है? Okay, so we can start the class now. There was a problem actually in maybe transformer or something else. Now it is sorted. So here are a few questions of both synonyms and antonyms. Some of them are of synonym and some of them are of our antonyms. So we'll solve them together, kind of mixed questions. The first question we can start is synonym for abate. Now, abate is a word, it's a verb actually. So we have to look for the word that has similar meaning to abate. Abate का मतलब होता है sufferings को कम करना, to make something less severe. यानी कि maybe you have some health problems or something else or pain, तो उसको थोड़ा सा कम करना. So that is called abate. To make something unpleasant less severe. तो उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वर्ड दैट इज लेसन. बिकॉज इंक्रीज का मतलब तो बढ़ाना होता है, कंटिन्यू मीन्स चालू कर रखना, और वर्सन का मतलब है और बुरा करना. जबकि इसका मतलब होता है टू लेसन द सफरिंग, टू मिनिमाइज द सफरिंग मे बी ऑफ बिकॉज ऑफ पेन और समथिंग. सिनोनिम जो होगा अबेट के लिए दैट इज लेसन. लेसन इज ऑल्सो वर्ब. जैसे आपकी अबेट वर्ब है वैसे ही लेसन इज ऑल्सो अ वर्ब, कम करना. Antonym for benevolent. So now we have to look for the word that is opposite in meaning to the word benevolent. First, find out the meaning of benevolent and then go for the exact opposite meaning. The word that has exact opposite meaning. So benevolent is something that is beneficial. ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट से जुड़ा हुआ एक वर्ड है. Benevolent means something that is good for us, that is profitable. सो एग्जैक्ट ऑपोजिट में काइंड नहीं आएगा, जनरस नहीं आएगा, चैरिटेबल भी नहीं आएगा. इट इज मेलिसस. सो मेलिसस इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट वन. ऑग, आरन. बिकॉज काइंड is a kind of positive word. Generous is also a positive word, and same goes for charitable. Then we can go with malicious. Malicious is a negative word. So benevolent is something that is profitable, that is good for some person. Malicious is something that is not good, toxic, or maybe that has some negative presence. Synonym for cacophony. The word is cacophony. Cacophony हमने कल देखा था. Cacophony means lots of unpleasant sounds together. That is cacophony. Now we have to go for the word that has similar meaning. Harmony, definitely not possible. Silence, not possible. Melody is not possible. Discord is the right answer. Option C would be the right answer. Discord. Yes, discord is the right answer. Because cacophony means unpleasant sounds. Melody तो pleasant होता है. Silence में तो sound है ही नहीं. Harmony means good sounds. Not good sounds, but harmony means when we live together happily. Discord is the right answer. Antonym for ephemeral. So ephemeral is the word. It is, I think, an adjective. Ephemeral is an adjective. So we have to go for the word that has opposite meaning. Exact opposite जो meaning है वो हमें word इसमें चाहिए. Let's see which is the right one. Ephemeral. So the correct answer of this word would be I want all you answer. So one plus nod saying C. So antonym of ephemeral actually is a transient. Transient means something that is not permanent, that is temporary. So
एग्जैक्ट ऑपोजिट इज परमानेंट। एंटोनिम फॉर एफिमेरल, एफिमेरल का मतलब क्या है? दैट लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका ठीक ऑपोजिट इज परमानेंट। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम फॉर लेकोनिक। लेकोनिक वर्ड जो है उसका सिनोनिम बताना है। लेकोनिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज ब्रीफ, शॉर्ट। जो शॉर्ट होता है, जो ब्रीफ में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज लेकोनिक। और कंसाइज इसका ठीक सिनोनिम वर्ड है। कंसाइज मीन्स कम शब्दों में, इन फ्यू वर्ड्स। बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। गैरुलस तो वो होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है। वर्बस, गैरुलस, वर्डी, दे ऑल हैव सेम मीनिंग एक्सेप्ट द ऑप्शन बी, दैट इज कंसाइज। कंसाइज मीन्स when you explain something in short, in brief, laconic. Antonym for mitigate. So what is the meaning of the word mitigate? Mitigate का जो भी मतलब है उसका ठीक opposite word हमें चाहिए। Exact opposite in meaning of the word mitigate. Mitigate का मतलब होता है कम करना। Mitigate is something when we lessen something, so we call it mitigate। और उसका एंटोनिम का मतलब बढ़ा देना हो जाएगा, है ना? समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी योर आंसर्स। सी, एग्रावेट। एलिविएट का मतलब भी कम करना होता है एक्चुअल में। एलिविएट जो होता है उसका मतलब भी कम करना ही होता है। ठीक है। टू मेक समथिंग, जैसे पेन है तो उसको एलिविएट करना मीन्स कम करना। सेम गोज फॉर लेसन एंड रिलीव। एग्रावेट इज द राइट आंसर। टू मेक समथिंग मोर सिवियर इज कॉल्ड एग्रावेट। एग्रावेट इज द राइट आंसर। मिटिगेट मीन्स टू लेसन पेन, कम करना। ठीक है। ठीक ऑपोजिट हो गया एग्रावेट, यानी कि बढ़ाना। सिनोनिम फॉर ऑब्ज्यूरेट। ऑब्ज्यूरेट वर्ड का हमें बताना है सिनोनिम। ऑब्ज्यूरेट इज एन एडजेक्टिव। ऑब्ज्यूरेट इज एन एडजेक्टिव। सो ऑब्ज्यूरेट इज समथिंग दैट इज हार्ड टू कन्विंस। somebody who is very hard to convince. Someone that we cannot make him do things as our own convenience। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ऑब्ज्यूरेट इज अ पर्सन हु इज वेरी फर्म, हु इज वेरी काइंड ऑफ फास्टिडियस, जो हमने कल देखा था। सो इट इज सेम एज स्टबन। स्टबन इज द राइट आंसर। जिससे अपना, जिसको मनाना, जिससे बात मनवाना इतना आसान नहीं है। सो ऑब्ज्यूरेट का जो सिनोनिम है वो स्टबन है। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द स्टबन ऑलरेडी, देन रिमेंबर दैट ऑब्ज्यूरेट एज ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग। एंटोनिम फॉर pragmatic, सिंपल वर्ड है बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट। एंटोनिम फॉर pragmatic, pragmatic का मतलब होता है प्रैक्टिकल। एंटोनिम जो है वो क्या होगा? एंटोनिम होगा आइडियलिस्टिक। इट शुड बी आइडियलिस्टिक, बिकॉज pragmatic जो है वो रियलिस्टिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। द करेक्ट आंसर शुड बी आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक इज द राइट आंसर। सिनोनिम फॉर क्वेंड्री। क्वेंड्री, synonym for quandary. Let's see what is the right one. क्या लगता है? बताइए एक बार। क्वेंड्री एक्चुअली इज अ स्टेट इन विच वी डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है। जहां पे हमें कुछ भी क्लियर नहीं होता। नॉट क्लियर।
सो सर्टेनिटी में तो क्लियर होता है, सॉल्यूशन में भी क्लियर होता है, क्लैरिटी में भी क्लियर होता है। डिलेमा इज द राइट आंसर है। डिलेमा इज द राइट आंसर। व्हेन यू आर इन डिलेमा नथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो क्वेंडरी इज अ स्टेट इन विच नथिंग इज क्लियर, you are not able to decide about things. So the correct answer is dilemma. Antonym for recalcitrant. Recalcitrant. Antonym for recalcitrant. Let's see the answer. Recalcitrant. Recalcitrant is actually an adjective. It means someone who does not follow rules. One whom we cannot control. Recalcitrant का मतलब क्या है? Who does not follow rules. Whom we cannot control. तो ओबीडिएंट तो कंट्रोल कर सकते हैं, रूल फॉलो करता है। डिफाइंट भी करता है। रेबेलियस आई थिंक शुड बी द राइट आंसर। रेबेलियस जो पर्सन होगा वो ही वॉन्ट फॉलो। अच्छा 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 अच्छा, सिनो एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए, ओके ओके। ओबीडिएंट इज द राइट आंसर है ना। ओके। वी नीड एंटोनिम्स एग्जाम्स में भी। सो मेनी टाइम्स वी मेक मिस्टेक्स, वी डोंट रीड whether we need antonym and synonym, and without reading we just assume certain answer and we make mistakes. So antonym चाहिए था। recalcitrant means somebody who does not follow rules, so obedient is the right answer. Synonym for sagacious। sagacious का synonym बताइए। sagacious का synonym मुझे लगता है क्या होना चाहिए? sagacious somebody who has some wisdom I think। sagacious का मतलब who has some wisdom, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसका ठीक ऑपोजिट कौन होगा? अनवाइज होगा। who is not wise, because saga sagacious। ए क्या क्या है ये? इसका आंसर होना चाहिए अनवाइज। एस्ट्यूट तो जो होता है वो स्किल्ड होता है, एक्चुअल में एस्ट्यूट तो पर्सन जो है वो स्किल्ड होता है। सिनोनिम चाहिए था। तो सगेसियस जो है वो, अच्छा 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 अच्छा, सिनोनिम चाहिए तो फिर तो सिनोनिम फूलिश तो कहाँ से हो जाएगा? ये भी नहीं। एस्ट्यूट इज द राइट आंसर। हु इज स्किल्ड, हु हैज अंडरस्टैंडिंग। ओके। तो सिनोनिम चाहिए था भाई, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। सिनोनिम चाहिए तो सिनोनिम भी देखें, एंटोनिम ना ढूंढें। ये इसकी वजह से गलत हो रहा है। एंटोनिम फॉर टेनियस। नाउ वी नीड एंटोनिम, एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड टेनियस। तो टेनियस जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड हमको चाहिए, ठीक है। टेनिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक, वेरी वीक, अनसर्टेन। तो उसका ठीक ऑपोजिट हमको चाहिए। ठीक ऑपोजिट होगा सब्सटेंशियल। थिन नहीं होगा, फ्लिम्सी नहीं होगा, वीक तो है ही फिर। द राइट वन इज सब्सटेंशियल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेनियस मीन्स वेरी वीक एंड अनसर्टेन। who's weak and who's uncertain, is that clear? ठीक है। synonyms for ubiquitous। ubiquitous ubiquitous एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग चाहिए हमको, ये ध्यान रखना, ऑपोजिट मत देखना। ubiquitous, ठीक है। सो ubiquitous का आपको सिनोनिम बताना है, बताइए क्या होगा? ubiquitous का मतलब होता है जो कि सभी जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्या मतलब होता है? पहले तो इसका मतलब पता कर लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड उबिक्यूटस? उसके बाद आपके लिए आंसर करना इजी होगा। चलिए। वन प्लस नॉट थ्री फाइव जी सेइंग लिमिटेड परवेसिव। तो अगेन वी नीड सिनोनिम।
तो जो सभी जगह प्रेजेंट है, तो फिर उसका तो लिमिटेड ही हो, परवेसिव ही होना चाहिए मुझे लगता है। बिकॉज लिमिटेड तो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, रेयर और स्केर्स भी अपोजिट हो जाएंगे। परवेसिव शुड बी द राइट वन। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होना चाहिए, है ना। ये ऐसे क्यों लिख रहे हो, ए स्लैश ऑप्शन सी, व्हाट डज इट मीन? एंटोनिम फॉर वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब बताइए, और फिर इसका बताइए एंटोनिम। एंटोनिम फॉर वैसिलेट, सो वैसिलेट का एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस सी व्हाट शुड बी द राइट वन। करिए ट्राई। वैसिलेट का मतलब होता है व्हेन समथिंग कीप्स चेंजिंग। ठीक है। वैसिलेट का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग कीप्स चेंजिंग। तो जो चेंज नहीं होगा वो आपका इसका आंसर बनेगा। इस तरह से आप इसमें देखिए, फ्लक्चुएट मतलब तो वो चेंज होता रहता है ना। वो तो आंसर हो नहीं सकता। डिसाइड। हेजिटेट का तो फिर बात ही नहीं है, हेजिटेट भी नहीं होगा, वेवर भी नहीं होगा, डिसाइड, या फिर एक बार वर्ड हो सकता था, रिजोल्यूट, और मे बी फर्म। ठीक है। ये इनके आंसर हो सकते हैं। सो एंटोनिम फॉर वैसिलेट इज डिसाइड। द क्वेश्चन नंबर 15 इज सिनोनिम फॉर जीलोट। जीलोट का सिनोनिम बताना है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द वर्ड जीलोट। वी नीड अ सिनोनिम। जील का मतलब होता है उत्साह, एंथुसियाज्म, जील। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिटिक, मॉडरेट, अपैथेटिक या फेनेटिक? द करेक्ट आंसर इज फेनेटिक, एकदम सही है। जील का मतलब होता है उत्साह, और फेनेटिक जो होता है ना उसका मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि somebody who is enthusiastic but in not a positive way actually. Fanatic means somebody who is that much enthusiastic that he is sometimes out of control, and he can make things like worse, or maybe something go in a wrong way. So option A is the right answer. Synonym for abandon, abandon का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना। इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन बी, कीप तो रखना होता है, रिटेन भी रखना, होल्ड भी रखना, तो ऑप्शन बी फोरसेक जो है वो उसका आंसर होना चाहिए। सिनोनिम फॉर अबेंडन इज फोरसेक। अबेंडन और गिव अप दोनों सेम ही होते हैं। सिनोनिम फॉर ब्रीफ। ब्रीफ मींस शॉर्ट में। लॉन्ग तो नहीं हो सकता, लेंदी भी नहीं हो सकता, एक्सटेंडेड भी नहीं हो सकता, कंसाइज मस्ट बी द राइट आंसर। कंसाइज, लेकोनिक, ब्रीफ, ये सबका मीनिंग सेम है। सिनोनिम फॉर काम। काम का मतलब है जो शांत है। इसका सीधा सीधा हो जाएगा सीरीन। इसका ऑप्शन ए है सीधा सीधा आंसर। बिकॉज डिस्टर्ब, एजिटेटेड और टर्ब्यूलेंट वो सारे के सारे जो है वो हैं, शांत नहीं है। ये सब के सब ऑपोजिट वर्ड्स हैं। टर्ब्यूलेंट का मतलब तूफान होता है, जो कि एयर, आई मीन व्हेन वी आर फ्लाइंग, जब आता है। एजिटेटेड का मतलब भी somebody who is नॉट calm एंड composed। डिस्टर्ब भी वही है, तो सीरीन जो है वो सही जवाब है इसका। सिनोनिम फॉर डेंजर, डेंजर का सिनोनिम बताना है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड पेरिल। तो डेंजर के ऑपोजिट वर्ड है ये, सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। यानी कि पेरिल जो है वो सही जवाब होना चाहिए। पेरिल इज द राइट आंसर। ऑग, एकदम सही है। सिनोनिम फॉर ईगर। ईगर मीन्स somebody who is excited about something।
इनडिफरेंट जो है उसको फर्क नहीं पड़ता, अनइंटरेस्टेड भी वही है, जिसको कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। एंथुसियास्टिक जो है इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, एंथुसियास्टिक, हुज ईगर फॉर समथिंग। यस, पैकमैन। Synonym for fragile. Fragile means something that is very delicate. फ्रेजाइल जो है बहुत डेलिकेट होता है। अच्छा, वही आंसर है ना? डेलिकेट ही सही जवाब है। स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल ये तो थोड़े से स्टफ होते हैं। सो डेलिकेट जो है वो आपका सही जवाब है। फ्रेजाइल, डेलिकेट, समथिंग दैट इज ब्रोकन इजीली। Synonym for generous. Generous means somebody who is kind hearted. Somebody who is kind hearted। स्टिंजी, मिजरली, सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं हो सकते, चैरिटेबल ही पॉसिबल है बस। चैरिटेबल ही हम लोग इसको आंसर मान सकते हैं। बाकी वर्ड्स को हम लोग आंसर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। यस, सही जवाब है। सिनोनिम फॉर हैप्पी, ये सिंपल हो गया एकदम। सैड नहीं होगा, ग्लूमी मिजरेबल नहीं होगा, जॉयफुल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ऐसा तो नहीं आएगा। आएगा तो अच्छी बात है। सिनोनिम फॉर इग्नोर, इग्नोर का सिनोनिम बताना है। इग्नोर का सिनोनिम, हीड, अटेंशन और नोटिस तीनों का मीनिंग सेम होता है, टू पे अटेंशन। डिसरिगार्ड का मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट केयर। डिसरिगार्ड व्हेन यू डोंट केयर। करेक्ट। सिनोनिम फॉर जॉय, जॉय का सिनोनिम होगा सोरो, ग्रीफ, डिलाइट और फिर मिजरली, मिजरी, सॉरी मिजरी। सो डेफिनेटली सबको पता होगा आंसर, डिलाइट इज द राइट आंसर। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। सिनोनिम फॉर काइंड, काइंड का सिनोनिम बताइए। क्रूअल, मीन, हार्श और बेनिवोलेंट। सिनोनिम बताना, सिनोनिम। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये ऑपोजिट है ना, क्रूअल, मीन एंड हार्श, बेनिवोलेंट। ठीक है। लेजी का सिनोनिम क्या होगा भाई? आइडल। लेजी का सिनोनिम हो जाएगा आइडल, है ना? बाकी डिलीजेंट और ये इंडस्ट्रियस दोनों हार्ड वर्किंग होते हैं। तीसरे का मतलब तो आपको भी पता है। तो आइडल इज लेजी। एक ये आइडल होता है और एक ये आइडल होता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। सिनोनिम फॉर मिस्टेक, synonym for mistake is error। accuracy, correction, perfection, they cannot be the right ones, error is the right answer, mistake, error। सही है, आई ए, ऑग। सिनोनिम फॉर नॉइजी, नॉइजी मतलब जो बहुत ज्यादा शोर शराबा है जहाँ पे, उसका सिनोनिम बताना है। 14th का डी करेक्ट है। लाउड इज एग्जैक्ट ऑपोजिट, क्योंकि पीसफुल, साइलेंट और क्वाइट तो नहीं हो सकते। ओल्ड का सिनोनिम, सिनोनिम फॉर ओल्ड, ओल्ड का क्या हो जाएगा भाई? न्यू हो जाना चाहिए, है ना? अच्छा अच्छा, सिनोनिम बताना है। एंशियंट, एंशियंट इज द राइट आंसर। सिनोनिम फॉर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का सिनोनिम बताइए। प्रॉम्प्ट तो मुझे लगता है फास्ट होता है ना शायद, थोड़ा सा स्पीड। प्रॉम्प्ट का मतलब स्लो तो हो नहीं सकता, डिले, लेट, पंक्चुअल ही हो सकता है। ये ऑप्शन को हम लोग आंसर मान रहे हैं। प्रॉम्प्ट का जो सिनोनिम है वो पंक्चुअल है। अगर प्रॉम्प्ट का आपको नहीं पता था तो आप उसे याद रख सकते हैं। सिनोनिम फॉर क्वाइट, क्वाइट मीन शांत, एकदम शांत। साइलेंट हो जाएगा ये तो, है ना? लाउड, बॉइस्चरस और नॉइजी तो हो नहीं सकता, साइलेंट ही हो सकता है क्वाइट का।
करेक्ट है। सेवन सिनोनिम ऑफ रिच, रिच सॉरी, रिच का क्या होगा? वेल्थी, वेल्दी। डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिस्ड, पुअर का मतलब तो आपको पता होगा, बट इनका भी ध्यान रखना। इम्पोवरिस्ड का मतलब भी गरीब होता है, गरीबी होता है। और डेस्टिट्यूट का मतलब भी वही होता है। दोनों का मतलब सेम होता है। सिनोनिम फॉर सैड एंड सिनोनिम फॉर टॉल। सैड का हो गया जॉयफुल या चीयरफुल। अच्छा अच्छा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, अनहैप्पी। ऑपोजिट सिनोनिम पता करना है ना। सिनोनिम फॉर टॉल, टॉल का क्या हो जाएगा? हाई। सिनोनिम फॉर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का सिनोनिम बताइए। अंडरस्टैंड का मतलब होता है क्या? मिस इंटरप्रेट, कॉम्प्रीहेंड, इग्नोर एंड ओवरलुक। इसका मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, ऐसे कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड इज टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम फॉर वैल्यूएबल, सिनोनिम फॉर वैल्यूएबल। वैल्यूएबल इज प्रेसस, प्रेसियस। सही है ये भी। सिनोनिम फॉर वाइड, वाइड का मतलब जो चौड़ा है, चौड़ा है मतलब जो ब्रॉड है। ऑप्शन डी, ब्रॉड इज द राइट आंसर। एक्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा बताइए? सिनोनिम फॉर एक्यूरेट। रॉन्ग, इनकरेक्ट, फॉल्टी या फिर प्रिसाइज। प्रिसाइज होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। मेनू का, ऑग, एवरीबॉडी, प्रिसाइज ही होना चाहिए, प्रिसाइज ही होता है। सिनोनिम फॉर ब्रेव, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर ब्रेव? ब्रेव का सिनोनिम होगा करेजियस। करेक्ट। सिनोनिम फॉर कोल्ड, हॉट, वार्म, हीटेड, चिली। सिंपल है ये तो सारे। एपीएसएसबी में इस तरह से भी इतने ही आते हैं। सिनोनिम फॉर डार्क, एम्प्टी और फास्ट, इन तीनों का सिनोनिम बताना है। डार्क का, एम्प्टी का और फास्ट का। डार्क का हो जाएगा सिनोनिम डिम। डार्क का डिम ही हो सकता है, लाइट, ब्राइट और रेडियंट तो नहीं हो सकता। सिनोनिम फॉर एम्प्टी, एम्प्टी का जो होगा वो हो जाएगा खाली, वेकेंट। और फास्ट का सिनोनिम हो जाएगा क्विक। क्विक इज द राइट आंसर। सिनोनिम फॉर ग्रेट, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, इन तीनों का दोबारा से आपको एक बार सिनोनिम बताना है। सबसे पहले ग्रेट का जो है वो सिनोनिम हो जाएगा स्मॉल, टाइनी और माइनर तो होगा नहीं, एनॉर्मस होगा। एनॉर्मस के अलावा यूज भी हो सकता है। ठीक है। जाइगेंटिक भी होता है। सिनोनिम फॉर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का होता है ट्रूथफुल, डी ऑप्शन। देन सिनोनिम फॉर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का स्मार्ट, अगेन ऑप्शन डी। तीनों का ऑप्शन डी निकल के आया इनका, इनॉर्मस, ट्रूथफुल एंड स्मार्ट। सिनोनिम फॉर जर्नी, अच्छा इसमें आंसर लिखे हुए हैं, इतने ही थे ये, है ना? काफी सारे हैं, ये भी कम नहीं है। चलिए एक और मैं आपके सामने
अभी स्लाइड रखता हूँ, 1 मिनट रुको बस। They say he is an uncouth person, but my perception is something different and I enjoy being with him. इसमें एक्चुअल में आपको बताना है सिनोनिम्स। इसमें भी आपको सिनोनिम बताना है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड लेटर्स। तो अनकाउथ का क्या होगा, मतलब इल मैनर्ड, अनफ्रेंडली, एक्सट्रीमली पोलाइट या फिर एक्सट्रीमली बोरिंग। एक बार करिए ट्राई। अनकाउथ का मतलब एक्सट्रीमली बोरिंग तो नहीं होना चाहिए। इज इट करेक्ट? अनकाउथ इज बोरिंग या फिर अनकाउथ इज अनफ्रेंडली? हम्म। अनफ्रेंडली होता है अनकाउथ, एक्सट्रीमली बोरिंग नहीं होता। somebody who is unfriendly। पैकमैन। The decision regarding the closure of the company was made over the vociferous objections by the employees। vociferous। vociferous का भी आपको सिनोनिम ही पकड़ना है, ठीक है। We have to go for the synonym of vociferous। vociferous मतलब somebody who is vocative, who speaks, who's not silent। डेडिकेटेड तो नहीं होना चाहिए यार। लाउड हो सकता है, लाउड हो सकता है, डेडिकेटेड नहीं हो सकता। वॉयलेंट भी नहीं होगा, लाउड शुड बी द आंसर। vociferous means who is open about his views। तो ये हो जाएगा लाउड। Although the treatment was abortive, the doctor learned a lot from the response by the medicine। Although the treatment was abortive, abortive जो है उसका भी आपको बताना है synonym। harmless, great, productive, ineffective, ineffective। The answer is ineffective। Abortive means something that didn't succeed, something that didn't work, that is ineffective, so we call it abortive। ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन इन द पार्टी वर नॉट अट्रैक्टेड टू द वेपिड एंटरटेनमेंट। वेपिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेपिड? वेपिड एंटरटेनमेंट। सिनोनिम बताना है आपको एक बार फिर दोबारा से। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर वेपिड? बताइए। उसका मतलब होता है, क्या होता है? समथिंग दैट इज नॉट फन, समथिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। डल हो जाना चाहिए, है ना, डल या फिर सीरियस। वेपिड मतलब समथिंग दैट इज बोरिंग, दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। डल हम लोग कर सकते हैं, डल से सीरियस भी हो सकता है। आंसर तो सीरियस भी लग रहा है मुझे, बट डल को हम लोग ज्यादा सही मान लेंगे। ठीक है। कैथरीन गेव अ मास्टरली परफॉर्मेंस इन द टेमिंग ऑफ द श्रू। मास्टरली परफॉर्मेंस, मास्टरली का हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। कैथरीन गेव अ मास्टरली परफॉर्मेंस इन द टेमिंग ऑफ द श्रू। मास्टरली मीन्स ब्रिलियंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मास्टरली इज
ब्रिलियंट, चलिए बिल्कुल सही है, बढ़िया है। Because Jackson could not make it to the finals of the tournament, he has been doleful to the point of not being able to do anything. Doleful, synonym बताना है। Because Jackson could not make it to the finals of the tournament, he has been doleful to the point of not being able to do anything. डोलफुल का मतलब जो है होपलेस होना चाहिए ना। होपलेस ही सही जवाब होगा, ग्लीफुल तो नहीं होना चाहिए। होपलेस इज द राइट आंसर। ग्लूमी तो सैड होता है, ग्लूमी तो सैड होता है। होपलेस जो सही जवाब है। द स्पीच गिवन बाय द मिनिस्टर एट द रिपब्लिक डे परेड वाज टर्स, प्लेन एंड फोर्सिबल। फोर्सिबल, टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्स, बताइए जरा एक बार ध्यान से। इसका भी आपको सिनोनिम भी पकड़ना है। टर्स का मतलब भी होता है शॉर्ट, कंसाइज, लैकोनिक, ब्रीफ। ठीक है, द करेक्ट वन इज ब्रीफ। इसका मतलब भी होता है शॉर्ट में, टर्स इज ब्रीफ, ना कि कैची, एक्सपेंडेड या फिर लॉन्ग। She will come with us for the trek because since her birth, she has been living in a placid hilly region and misses that in the hustle of the city. Placid, placid, प्लेकेड एक वर्ड आपने सुना होगा। प्लेसिड का मतलब कहीं ना कहीं होता है शांति के साथ में, ठीक है। प्लेसिड इज समवॉट रिलेटेड टू समथिंग दैट इज पीसफुल, काम। तो इसका जो है आंसर ए होगा। काम जो है वो सही जवाब है इसका। काम, यस। प्लेसिड, प्लेकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक बाय द सी। काइंडली म्यूट रखिए प्लीज। टीटी, म्यूट रखना है, गाना नहीं गाना है। वॉक बाय द सी ड्यूरिंग डस्क टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ नेचर। यू विल सी scintillating वाटर, क्रिम्सन स्काई एंड द सेटिंग सन। सिंटिलेटिंग मौसम लग रहा है अच्छा है, इधर अगर नार लगन का है ना, गाने गा रहे हो तो सिंटिलेटिंग का सिनोनिम आपको बताना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड scintillating? Walk by the sea during dusk to experience the beauty of nature. You will see scintillating water. Scintillating का मतलब थोड़ा सा चमकता हुआ है ना, जब उसके ऊपर when it reflects the sun rays। रिफ्रेशिंग तो नहीं होना चाहिए, स्पार्कलिंग होना चाहिए एक्चुअली। मुझे लगता है स्पार्कलिंग ज्यादा सही रहेगा रिफ्रेशिंग से। स्पार्कलिंग मच बेटर। क्रिम्सन स्काई मीन्स रेड ऑरेंज सन। सिंटिलेटिंग का मतलब है काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स द लाइट, स्पार्कलिंग। ऑप्शन सी हमारे हिसाब से आंसर सही होना चाहिए। ड्यू टू द थेरेपीज सी हैज बीन अंडरगोइंग, हर बॉडी इज टू वीक टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन एनी मोर। कॉम्बैट, सिनोनिम दिखाना है आपको। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्बैट? बड़ा सिंपल है, टू फाइट। कॉम्बैट इज टू फाइट। She committed suicide because of the constant criticism on her relationship from the society, made her precarious। प्रिकेरियस का सिनोनिम बताना है। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस तो एक थोड़ा सा नोन वर्ड है, आई थिंक ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। प्रिकेरियस क्या होता है, बताइए जरा एक बार। प्रिकेरियस होता है डेंजर एक्चुअली। इसमें डिस्टर्ब्ड हो सकता है ना आंसर। शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म ऑन हर रिलेशनशिप फ्रॉम द सोसाइटी।
मेड हर प्रीकेरियस, ऑप्शन बी होना चाहिए सही जवाब। डिस्टर्ब्ड, यस। लोनली, एंग्री, इनसिक्योर नहीं होगा। To deal with frustrated and disappointed customers, you need an affable manager. Affable is somebody who is pleasant, who is more approaching. ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडली जो है इज द राइट आंसर। सिंपल था और अच्छा क्वेश्चन भी है। एग्जाम्स में कई बार पूछ भी लेते हैं। एफेबल, सोसेबल। इनसिक्योर तो नहीं होना चाहिए। इनसिक्योर, डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। सोसाइटी मेड हर डिस्टर्ब, नॉट इनसिक्योर एक्चुअली। तो सी कमिटेड सुसाइड। प्रिकेरियस का मतलब होता है समथिंग स्कैरी, समथिंग डेंजरस, समथिंग हार्मफुल। एग्जैक्टली तो वर्ड है नहीं ऑप्शंस में। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम सोसाइटी क्लियर्ड अप द फ्रिटर्स टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फ्रिटर्स क्या होता है? सिनोनिम बताना है। व्हाट इज फ्रिटर्स? वेस्ट, रैपर्स, गार्डन या क्राउड? रैपर्स होता है क्या? एक बार बताएंगे आंसर। मेनू का सेइंग वेस्ट, वेस्ट। ऑफ सेइंग वेस्ट। तब तो फिर वेस्ट होना चाहिए। ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम सोसाइटी क्लियर्ड अप द फ्रिटर्स, वेस्ट के साथ जाएंगे है ना। टू सेलिब्रेट द सोशल द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्राउड तो नहीं होगा, गार्डन भी नहीं होगा। रैपर्स और वेस्ट में से हो सकता था तो रैपर्स जो है इट इज ऑल्सो वेस्ट। ही कुड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स एज ही वॉज नॉट अ पॉन्डरस स्टूडेंट। पॉन्डरस का आपको बताना है सिनोनिम। पॉन्डरस स्टूडेंट, समथिंग मे बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट टाइप। क्या होगा बताइए। पॉन्डरस। स्टूडियस का मतलब तो हार्ड वर्किंग होता है। इंटेलिजेंट भी हार्ड वर्किंग होता है। लेबोरियस भी होता है, शार्प माइंडेड। ये तो पूरे के पूरे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। स्टूडियस कौन होता है? हार्ड वर्किंग होता है या फिर जो है लेजी होता है? एक बार स्टूडियस का मीनिंग पता करो। स्टूडियस इज हार्ड वर्किंग और लेजी, तब जाके क्लियर होगा। क्योंकि स्टडियस तो वही होता है लेकिन हार्ड वर्किंग जो पढ़ाई करता है। पराका, इंटेलिजेंट, लेबोरियस, शार्प माइंडेड। इसका आंसर थोड़ा अभी के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा हार्ड पे रखते हैं। इसका आंसर आप पता करना। ही कुड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स एज ही वॉज नॉट अ पॉन्डरस स्टूडेंट। ही वॉज नॉट अ पॉन्डरस स्टूडेंट। अगर पॉन्डरस होता तो गुड मार्क्स अक्वायर कर लेता। तो पॉन्डरस नहीं था तो पॉन्डरस का मतलब तो वही हो सकता है जो कि मतलब अच्छा इसमें फिर उस स्टूडियस होना चाहिए था मुझे लगता है। ये हो सकता है। ये हो सकता है ना। The jury decided to sentence the indict for child abuse and murder of the victim. Indict, the jury decided to sentence the indict for child abuse and murder of the victim. Indict एक्चुअली होता है accused। इंडिक्ट करना, एक्यूज करना। और ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडिक्टेड, इंडिक्ट का मतलब आरोप कर लगाना। टू accuse somebody of something, that is accused। इंडिक्ट। If you wish to outshine the dance competition, then you should be stringent with your practice. You should be stringent, stringent। Habitual routine तो नहीं होना सकता। Rigorous और steady में से एक होगा। It is either rigorous or steady। Stringent के साथ में मुझे लगता है rigorous ही जाएगा। Rigorous must be the right answer।
है ना? कंफर्म करिए एक बार, रिगरस या स्टेडी, क्या लगता है? विच इज द राइट वन? सही है। चलिए, although the measures are being taken by the government, the labor class is in abject condition amidst the virus spread across the community. Abject, आंसर इजी है। Although the measures are being taken by the government, the labor class is in abject condition amid the virus spread across the country. वर्थी नहीं होगा, अर्नड नहीं होगा, मिजरेबल या फिर टेरिबल में से मिजरेबल ही होगा। ठीक है। It is cynical that the thief's car crashed into a police station. It is cynical that the thief's car crashed into a police station. By reading the sentence, we can guess the answer easily. अगर आप पढ़ लोगे केवल तो उसी से आपको इसका मतलब जो है पता चल जाएगा। आसान है। इसका मतलब आयरॉनिक होना चाहिए, आयरॉनिक, ऑग इज ऑलरेडी सेइंग आयरॉनिक, है ना? आयरॉनिक इज द राइट वन। करेक्ट। इन द हॉस्पिटल, ये आयरॉनिक ही तो है कि मतलब जो चोर की गाड़ी का एक्सीडेंट भी पुलिस स्टेशन से हुआ है। इन द हॉस्पिटल फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद द स्टाफ असिस्टिंग द पेशेंट्स। इनएक्सप्लिकेबल के लिए सिनोनिम बताना है आपको। स्टूपिड, स्टूपिड, अनएक्सप्लेनेबल, ridiculous or legitimate, which is the right answer? Inexplicable, explicable, inexplicable means something that cannot be explained. Inexplicable क्या होता है? Something that cannot be understand, explained. Unexplainable is the right answer. Option second option is the right one. ठीक है, जिसको समझाया ना जा सके, inexplicable, unexplainable. Looks is too feeble, a reason that she gave to not like him. Feeble, feeble का मतलब तो कमजोर होता है। Looks is too feeble a reason that she gave to not like him. वीक होना चाहिए, वीक। बट यहाँ पे यूज करना कितना सही है वो मुझे नहीं पता, बट इसका मीनिंग तो वीक होगा। फॉस्टरिंग, बताइए सिनोनिम। सेफ गार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग, नर्चरिंग, which is the word similar in meaning to fostering? Foster means nurturing. ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। पालन पोषण करना, ठीक है, नर्चर करना, उसे कहते हैं फॉस्टर करना। प्रोपेल, प्रोपेल का भी आपको बताना है सिनोनिम। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोपेल? प्रोपेल का मतलब होता है आई थिंक किसी को वो करना, टू गेट समथिंग मूविंग और टू इंस्पायर समवन और टू, मतलब किसी को आगे बढ़ने में हेल्प करना, समथिंग लाइक दैट, प्रोपेल। ड्राइव, ड्राइव सही है ना। एक्लिमेटाइज तो वो होता है जब हम किसी ऊंची जगह पे जाते हैं, तो वहां पे जैसे सिक्किम के 0 पॉइंट गए तो बिफोर वी नीड टू एक्लिमेटाइज। ड्राइव इज द राइट आंसर, ठीक है। ड्राइव, ड्राइव इज द राइट आंसर। फोर्स, ड्राइव, पुश, मैसिव, मैसिव का भी आपको बताना है सिनोनिम। इसका तो सिंपल है, यूज हो जाएगा। यूज इज द राइट आंसर। स्टम्बलिंग ब्लॉक, again we need to go for synonym, stumbling block, stumbling
block, which is the right answer? Hurdle, obstacle, hurdle, correct. Defer, DEFER, differ, exact, similar, क्या होगा बताइए? Defy, differ, postpone, or indifferent, which is the right one that has similar meaning? It means to leave something until a certain time, means to postpone something. ठीक है, तो DEFER जो है इसका मतलब सीधा सीधा होता है किसी भी चीज को आगे की तरफ टाल देना, यानी कि पोस्टपोन कर देना। सीज, सिंपल है, सिनोनिम। स्टॉप, इसका मतलब होता है रोकना। पायस, अगेन सिंपल है। रिलीजियस, सिंपथेटिक, अफ्रेड एंड फेथफुल, सिनोनिम बताना है। रिलीजियस, सिंपथेटिक, पायस का मतलब होता है समथिंग दैट इज सेक्रेड होता है एक्चुअल में, तो उसको रिलीजियस से जोड़ सकते हैं हम लोग। रिलीजियस के साथ में उसको कंपेयर कर सकते हैं, वो ठीक रहेगा। अफ्रेड, फेथफुल और सिंपथेटिक तो नहीं होगा। जर्मिनेट, डीके, ब्रीड, प्रोड्यूस एंड स्प्राउट, बताइए। जर्मिनेट, सिनोनिम बताना है। जर्मिनेट का मतलब तो वही होता है, थोड़ा सा किसी चीज को क्रिएट करना है एक्चुअल में, ठीक है। स्प्राउट इज द राइट आंसर। जो हम लोग ग्रेन्स को करते हैं ना, स्प्राउट्स होते हैं जो चने वगैरह, दाल वगैरह होते हैं, ग्रीन मूंग दाल, रात को सोक करते हैं तो दिन में सुबह में स्प्राउट हो जाता है। स्प्राउट्स, जर्मिनेट। रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट का सिनोनिम बताना है, बताइए। क्या लगता है, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड रिक्यूपरेट? रिलोकेट, रीइंबर्स, रिकवर और रिहेबिलिटेट। रिक्यूपरेट का मतलब होता है टू गेट वेल, टू गेट बेटर, टू गेट योर पावर बैक, ठीक है। रिकवर करना किसी भी चीज के लिए। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, रिकवर करना। रिहेबिलिटेट नहीं होगा, रिकवर करना होगा। रिक्यूपरेट मीन्स रिकवर करना, ठीक है। ऑगरी, ऑगरी का बताना है आपको सिनोनिम, ठीक है। ऑगरी, बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड ऑगरी? ऑगरी, सॉरी, इट इज एक्चुअली जो ओमिन होते हैं, ओमिन कहते हैं, एक मैंने बुक्स में पढ़ा था, ओमिन मीन्स देयर आर साइंस दैट टेल अस अबाउट फ्यूचर। ओमिन एक्चुअली गुड गुड साइन, गुड साइंस होते हैं। प्रोफेसी है ना, इंटेंशन, एस्ट्रोनॉमी, फ्यूचर नहीं, प्रोफेसी। प्रोफेसी भी तो वही होता है, टू टेल अबाउट फ्यूचर। डिलेक्टेबल, नोबल, इंजॉयबल, डिलीशियस या सम्पचुअस, ये भी आपको सिनोनिम बताना है। डिलेक्ट, क्या डिलीशियस होता है क्या? हम्म, क्या लगता है? सही बोल रहा हूं मैं? इट इज डिलीशियस एक्चुअली। डिलेक्ट, डिलेक्टेबल, डिलीशियस इज द राइट आंसर। समथिंग दैट इज यमी, माउथ वाटरिंग, ठीक है, उसको आप कहते हैं डिलेक्टेबल, यानी कि डिलीशियस जो है वो सही जवाब है। डाइलेक्ट्रिक, अगेन यू हैव टू टेल सिनोनिम।
सो डाइलेक्ट्रिक का सिनोनिम आपको बताना है, बताइए। व्हाट शुड बी द सिनोनिम फॉर डाइलेक्ट्रिक? क्या लगता है? इट इज डिस्ट्रक्टिव, है ना? या नॉन कंडक्टर? इट इज नॉन कंडक्टर। ये टेक्निकल वर्ड है कुछ, है ना, फिजिक्स वाला। नॉन कंडक्टर इज द राइट वन, दैट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पाल्ट्री, सिनोनिम फॉर द वर्ड पाल्ट्री, बताइए। क्या लगता है? इस ये होता है समथिंग दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट इज द राइट आंसर। Poultry is something that is not important enough to consider or to take into consideration. So insignificant is the right answer for the word poultry. ठीक है? Disparage, disparage बताइए क्या होगा disparage का? Disparage. What should be the correct answer for the word disparage? Discriminate, belittle, scatter, क्या लगता है? वेस्ट, पैराबल, पैराबल तो नहीं होना चाहिए। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी चीज, किसी भी इंसान को काइंड ऑफ उसको क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, उसे डिमोटिवेट करना। डिस्क्रिमिनेट होगा क्या? पक्का होगा डिस्क्रिमिनेट? मुझे लगता है इसका आंसर होगा बी लिटिल। बी लिटिल मीन्स किसी को कम आंकना। टू काइंड ऑफ डीमोटिवेट समवन और टू क्रिटिसाइज समवन इन अ नेगेटिव वे, वो होता है बी लिटिल। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा इसका एक्चुअल में। डिस्क्रिमिनेट तो इसका गलत आंसर है। बी लिटिल इज द राइट वन। एलेक्रिटी, अगेन वी हैव टू गो फॉर सिनोनिम एलेक्रिटी, बताइए। एलेक्रिटी का सिनोनिम क्या होगा? एलेक्रिटी का मतलब होता है व्हेन यू आर काइंड ऑफ रेडी, enthusiastic, when you are willing to do something। अलार्म, फ्रैंकनेस, फियर, ब्रिस्कनेस, इनमें से मुझे लगता है कुछ भी नहीं होगा। इनमें से एक भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम लोग जाएंगे विथ नन ऑफ दीज। इनमें से एक भी जवाब नहीं होगा। बिटरनेस, एलेक्रिटी का मतलब होता है व्हेन यू आर एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, मीनिंग पूछा है ना। Hence, when you are kind of willing to do something, when you are positive about doing something, that is alacrity। बिटरनेस, बिटरनेस तो इजी है। बिटर तो कड़वा होता है। क्या होता है बिटर, बिटरनेस का सिनोनिम? When we don't have good terms with someone, that is bitterness। या फिर ये क्या, सोरनेस होगा या फिर कुछ और होगा? एक बार बाकी और की तरफ भी देख लो, डायरेक्ट आंसर मत करो। एक्रीमोनी,
आई थिंक एक्रीमोनी हो सकता है ना, एक्रीमोनी मीन्स व्हेन वी डोंट हैव गुड टर्म्स विद सम पीपल, दैट इज आई थिंक एक्रीमोनी, शायद एक्रीमोनी ही मुझे लगता है सही जवाब होना चाहिए। सही जवाब यही है एक्रीमोनी। सोरनेस तो नहीं लग रहा था, क्योंकि सोरनेस तो टेस्ट के लिए यूज करते हैं, बिटरनेस हम लोग जो है ये रिलेशंस में भी यूज कर लेते हैं, है ना। रिलेशंस में बिटरनेस हो सकती है, सोरनेस नहीं हो सकती। स्टेराइल, स्टेराइल का सिनोनिम बताइए। स्टेराइल होता क्या है? स्टेराइल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, है ना। इसका हो जाएगा बैरन। यस, बी इज द राइट आंसर, बैरन, स्टेराइल, बैरन। अल्टरकेशन सिंपल है ये तो। एक मिनट। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन इज व्हेन यू एक्सचेंज वर्ड्स, काइंड ऑफ वर्बल स्पैट एक्चुअली, आर्ग्यूमेंट्स, इसे कहते हैं हीटेड डिस्प्यूट। अल्टरकेशन का मतलब होता है जब आप किसी से तीखी बहस करते हैं, यू आर्ग्यू विद समवन, वर्बल स्पैट, इट इज अल्टरकेशन, ठीक है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का होता क्या होगा सिनोनिम? प्रिस्क्राइब नहीं होगा, प्रोवाइड नहीं होगा, फॉरबिड भी नहीं होगा, फॉरफीट होगा। ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। फॉरबिड होगा या फॉरफीट होगा? फॉरफीटर, फॉरफीचर मतलब जब्त करना होता है ना। फॉरफीचर मीन्स टू सीज होता है। फॉरबिड हो जाएगा फिर तो, है ना। पक्का फॉरबिड होगा। फॉरबिडन, फॉरफीट तो हार मानना है। नहीं नहीं, फॉरफीट हार मानने के अलावा एक सीज करना भी होता है। फॉरबिड हो जाएगा इसमें, चलो इसको फॉरबिड रखते हैं। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस का क्या होगा भाई? इंडेक्स, मिक्सचर, समरी और पजल। क्या लगता है सिनॉप्सिस का सिनोनिम क्या होगा? बताएं एक बार। सिंपल है इसका, समरी होता है। सिनॉप्सिस इज अ समरी। ये जो कंटेंटमेंट, सिनोनिम, क्राफ्टीनेस, सेटिस्फेक्शन, आइडलनेस और क्रेविंग। ये भी आसान है, अगर आप इसको आंसर कर पाओ तो इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं। कंटेंट इज सेटिस्फाइड एक्चुअली, सेटिस्फेक्शन इज द राइट आंसर। इसमें आसान और इजी और टफ कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताऊं। किसी वर्ड का मतलब पता होता है तो वो इजी है, अदरवाइज वो टफ है आपके लिए, बस इतना सा है। देर इज नथिंग इजी और हार्ड विथ vocabulary. If you know the meaning of certain word, it is easy for you. Otherwise, it becomes difficult. So, satisfaction is contentment. Fugitive, escaping, enduring, vain और weak. फ्यूजिटिव का मतलब होता है मुझे लगता है जो एस्केपिंग है। एक बार आप लोग बताएंगे। इंड्योर का मतलब होता है टू टू फेस समथिंग, है ना, टू बियर समथिंग। वीक तो बेकार है, वो तो होगा नहीं। एस्केपिंग ही मुझे लगता है सही जवाब होना चाहिए। यस। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का सिनोनिम होगा क्या बताइए? मेडलर, कैंसिल, एडवोकेट या फिर हॉरेड। एक्सपोनेंट, एक्स का मतलब तो कुछ बाहर जैसा होता है। एक्सपोनेंट मतलब क्या लगता है? सही जवाब क्या होगा इसका? आई थिंक इसका मतलब होगा एडवोकेट। कैंसिल नहीं होगा, हॉरेड नहीं होगा, मेडलर भी नहीं होगा, एडवोकेट होगा। टू सपोर्ट समथिंग, सपोर्ट्स एन आइडिया इन ऑर्डर टू परसुएड अदर्स।
किसी भी चीज की वकालत करता है, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है, किसी भी थ्योरी को, किसी भी आइडिया को। तो एक्सपोनेंट इज एक्चुअली एडवोकेसी, एडवोकेट। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सिनोनिम्स और अच्छा, अभी आपकी दूसरी क्लास कितने बजे से होती है? अभी कब क्लास है आपकी? अभी कोई और क्लास है कि नहीं है? संडे है आज तो वैसे। GOAD, गॉड। बताइए, व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गॉड? GOAD, गॉड। बताइए एक बार। क्या लगता है, क्या होगा इसका सिनोनिम? गुड नहीं है, गॉड है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है इरिटेट करना किसी को। सूद नहीं होगा, सेव नहीं होगा, और वर्शिप भी नहीं होगा। इट मीन्स टू इरिटेट समवन। फोमेंट, एक्सटिपेट, प्रोवोक, आइसोलेशन, एब्रेशन। फोमेंट। क्या प्रोवोक है क्या इसका? एक बार चेक करो। अगर आपको पता है तो बताओ। इज इट प्रोवोक और समथिंग एल्स? यस, बैकमैन। प्रोवोक, ठीक है, फोमेंट। आइसोलेशन अलग चीज है। एक्सटिपेट इज समथिंग एल्स। इम्परसेप्टिबल। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है आपकी खुद की सोच, आपकी विचारधारा, आपकी ओपिनियन। और परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल। इम का मतलब है इट इज ऑपोजिट टू परसेप्टिबल। परसेप्शन, इम्परसेप्शन। क्या होगा इसमें? परसेप्टिबल ऑब्वियस होगा क्या इसका? इम्परसेप्टिबल, इज इट ऑब्वियस? और समथिंग एल्स? फोर्थ, सबल। सबल। सबल क्या होता है? सबल, सबल आई थिंक वो होता है ना, इट्स काइंड ऑफ सबल, चपल, काइंड ऑफ क्लेवर, क्लेवर होता है क्या ये? सबल। तो इम्परसेप्टिबल का सबल हो जाएगा, ठीक है। हम्बल नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, मीन तो बिल्कुल नहीं है। कंटेन, सिंपल। कंटेन का प्रिवेंट नहीं होगा, लिमिट नहीं होगा, होल्ड होगा। ये तो आप सबको पता होगा। यस, होल्ड। डाइवर्जन भी सिंपल है। अम्यूजमेंट, डिस्टॉर्शन, डेविएशन और चेंज। द राइट आंसर इज डेविएशन। टू डेविएट फ्रॉम पाथ, भटकना। चेंज नहीं होगा, डेविएट होगा, ठीक है। चेंज इज समथिंग एल्स। रास्ते से भटकना, दैट इज डेविएशन, डाइवर्जन। फोर्टिट्यूड इज ऑल्सो इजी। सिमिलैरिटी, करेज, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, सेफ्टी। फोर्टिट्यूड इज क्या होगा बताइए? सिमिलैरिटी नहीं होगा, प्रोटेक्शन भी नहीं होगा, मुझे लगता है। अह, और शायद इन दोनों में से एक हो सकता है, ये नहीं होंगे, मुझे लगता है सेफ्टी या प्रोटेक्शन में से कोई एक हो सकता है। फोर्टिट्यूड। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, बताएं एक बार। फोर्टिट्यूड ये थोड़ा सा जो वॉर होते हैं, वॉर, उससे रिलेटेड है ये वर्ड। जैसे
फोर्टिट्यूड आई थिंक करेज है, समथिंग लाइक करेज। मुझे लगता है करेज है। वॉर से रिलेटेड है ये, है ना? तो मुझे लगता है इसका करेज आंसर है। सिमिलरिटी तो नहीं है। फोर्ट एक होता है, एक कुछ वो भी होता है जब हम लोग व्हेन वी मेक अ बाउंड्री अराउंड अस, उसको भी कुछ फोर्टिट्यूड या ऐसे कुछ नाम दिया जाता है। टू करेज। करेज इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वॉर। इतना मुझे याद था। करेज इज द राइट आंसर। इनएडवर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंशनल, अनडिस्टर्ब्ड और इग्नोरेंट। इनएडवर्टेंट। एडवर्टेंट का ठीक ऑपोजिट जो होता है वो होता है इनएडवर्टेंट, ठीक है? सो इनएडवर्टेंट इज undisturbed, unexpected, unintentional or ignorant. It is actually when you don't do something with planning. अनइंटेंशनल होगा मुझे लगता है। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है जब आप अचानक से कुछ करते हैं, बिना प्लानिंग किए करते हैं, तो अनइंटेंशनल हो जाता है वो। अनएक्सपेक्टेड नहीं हो सकता। हालांकि कहीं ना कहीं दोनों लगभग सेम जैसे ही हैं। समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड अलग अलग है। व्हेन यू डू समथिंग विदाउट नोइंग इट, दैट इज नोन एज अनइंटेंशनल। तो अनइंटेंशनल हम लोग इसका आंसर मानेंगे, ठीक है? इनएडवर्टेंट इज अनइंटेंशनल। अनएक्सपेक्टेड इसको मत मानिए आप। चलिए लास्ट था, है ना? तो जितना थोड़ा बहुत हो सकता था, एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। और अगर पॉसिबल हो सकेगा, टाइम होगा, तो एक आध क्लास मैं आपके लिए और करा दूंगा, ठीक है? उस एक आध क्लास में हम लोग और भी जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। तो डाउट वगैरह होने से आप पूछ सकते हैं, लेकिन है ना, ग्रुप में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे एक बार मैसेज करके, बस ये है कि जब मैं टाइम मिलेगा मुझे तब मैं आपको जवाब दे दूंगा। इंस्टेंटली आंसर एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मैं मोस्टली 9:30 to 5:30 अपना खुद का क्लास में रहूंगा अभी। बट आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है? चलिए, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है ना? आपका वन वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम और ये आपका ईडियम्स हमने कंप्लीट कर लिया। और अगर कुछ मुझे ऐसा लगेगा तो मैं कोई पीडीएफ वगैरह आपके साथ में शेयर कर दूंगा एक्स्ट्रा, जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो, आई मीन जो हमने यहाँ नहीं किया। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा मैन ऑफ वर्ड अभी, ठीक है? अभी अभी मैं मतलब आज सेंड कर दूंगा पीडीएफ आपको। कल वाले भी कर दूंगा और आज वाले भी कर दूंगा। अप्रैल, अरन, ओग, ताचेंग, एवरीबडी। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होने से आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टी 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 आर, पैकमैन, मेनू का सभी लोग, है ना? माने होगा। कोई मतलब मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट है, कोई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कोई आंसर क्वेश्चन है, कुछ भी पूछने के लिए आप सभी इनवाइटेड हैं। मैं जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। 30 तारीख में अभी बहुत टाइम है, आपका जो एग्जाम का डेट है, तो तब तक आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, सभी लोग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर अटेंडिंग द क्लास। और हम लोग देखते हैं, आगे मिलते हैं अगर एक आध क्लास होता है तो। चलिए, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। कर सकते हैं आप लोग लीव।